Arif again. We are back with our new topic. Today's Interesting. It would help you out to find yourself, or rather, I would say, you would be able to discover your potential, which are hidden, which you haven't, discovered yet. But with this, practice or this tool, we can say, you would be able to, find a very important skill which is already within you, but you haven't discovered yet. It has already helped me out, and I'm sure you would be able to correlate with it, and if you work on it, and I'm sure, very sure, that it would really help you out, in be it in your professional life or be it in your personal life. So let's get started. Welcome to my channel, TNQ Cursed by Arif, where I post related content related to training and quality with examples from BPO. So moving on to this topic. As you can see, the today's topic is Johari window. While, around 5 to 6 years ago, right, well, I started making PPT. All of a sudden, I would have made PPT around almost 10 or 12 years ago, but I was not into very much, making PPT, right? Then I got in the time of COVID in 2020. I started to make PPT, and within, around after 2, 3, topics, I discovered myself that I have a very, kind of good command, or you can say a good hands-on with PPT. It was, hidden somewhere. I didn't knew it. So I discovered it. It was already within me. No one told me that. But when I made out the PPTs on the topics, people liked it. So from there, I started, focusing on more on the making PPTs, how to make it, how to make color combination, which icon to be used, which image to be used, right? So today's topic would be Johari window. It's a kind of a soft skill topic. Moving on, Johari window. It's a kind of a technique. You can say it's a kind of technique where we discover ourselves, or we discover our awareness, right? It was developed by a psychologist called Joseph Luke and Harrington Ingham in 1955. From their name, it derived Johari. It came from their names combination from Joseph and Harrington. Right. Moving on. So Johari window objective, its objective is to, develop your, kind of, or rather, I would say, be aware of yourself, right? There, we can divide ourselves, our understanding, our skill, or our personality in four different parts. First is a open area, which is known to self and known to others, right? Second would be blind spot, which is unknown to self. You don't know about yourself, but other people knows about it, right? The third would be hidden area, which you know about yourself, but others don't know about it, right? And the fourth would be unknown area. It is unknown to you as well and unknown to others as well. Example, right? If you have a good communication, right? It is, others to appreciate it, knows that you have a very good communication, and you too know about that, right? Now it's unknown to self. There are certain, part of your personality which others knows about it, but you don't know about that. Example, if you interrupt others while communicating, other people observes this, but you are not aware that you bypass others when they speak, or you don't allow people to speak when you are trying to communicate, right? Now the third part would be something like you know about yourself, but others don't know about it. Example,
what I can say is, suppose you are a very good bathroom singer, right? You sing on your bathroom. You are a very good singer, but other people around you don't know about that. You are a very good singer. So it's a kind of, a trait, a personality trait where you know about yourself, but it's not known to others or the people around you. The fourth would be unknown area. Unknown area where you too don't know about yourself and others too don't know about that. When I started the topic about Johari window, I stayed about PPT, right? I always had that kind of skill, right? But I didn't knew about it, that I can make a good PPT. And other people too don't know about that because I didn't used to showcase myself that I have a good knowledge about PPT. In fact, I too didn't know about that I can make good PPT. While with few researchers and a bit practice, I developed this trait. So it's a kind of trait where you don't know about yourself, and that trait is not known to others also, right? So this kind of part of your personality which has been hidden from you too and from others too. It can be anything, be it in your personal life or your professional life. Example, while I was working in a BPO, right, and I had a manager. So he was very good in Excel, right? But he didn't knew that he's too much, kind of God's hand kind of expert in Excel, right? And he too didn't used to, showcase his talent. But all of a sudden, when he got a, chance, right? I would say, to type of training, right? So while I was working with him, he taught me something, and I was totally mesmerized with his knowledge and his skill. And I said to him, "Sir, आपको ये तो बहुत ज़्यादा आता है, बहुत अच्छा आता है आपको." Like, then he replied, "क्या बात कर रहा है? मुझे तो लगा ये कॉमन है, सबको आता होगा." Then I said to him that, "Sir, no, actually, you have a very good skill." Then he realized, might be he realized later, after when I said to him, then he started training others too. उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं उससे पहले कि वो किसी और को भी इस चीज के बारे में बता सकते हैं या सिखा सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कोई बहुत बड़ा स्किल नहीं है और ना ही वो इस चीज में एक्सपर्ट है। उन्हें कभी ये चीज का रियलाइजेशन नहीं हुई था। जब उनसे बात हुआ, जब मैंने उनका काम देखा, देन आई रियलाइज कि यस, ही इज वेरी एक्सपर्ट इन इट। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मूविंग ऑन। So what first is open area, which is known to self and known to others as well. Example, it would be, kind of your name, age, your profession, your hobbies, the language you speak, your, kind of personality you have, right? Or such as skills, it would be like public speaking or cooking or riding or gaming or singing, right? It is, you to know about that and other people while you are working with or your friend circle or your family, they too know that you are good in it, or your name is kind of example, I would be taking my name Arif, I'm 38. The people know me, right, by my name, with whom I work or with whom I meet daily, and they to know my almost, they would be able, if you ask them about my age, they would be easily able to guess what's my age. There might be kind of variation between 1 or 2 years plus or minus, but at least they would be able to judge that. So it's kind of open area. It is known to everyone, be it me or be it to others. Moving on. Open area, it's which I said, it's important. It helps to build trust, encourages open communication, right? When people know about you and you too know about that, so people start communicating or people start telling up, you know, as per your personality. Example, I don't, you know, love eating spicy foods, right?
I too know about that. My family, that too, they too know about that. I don't like, eating spicy food. And the people around with whom I, gel up or I regularly have my food, they too know that I don't like spicy food, right? So what they do, they don't offer me spicy food, right? So this is what I'm trying to say. It helps you to know, kind of gives a path where people can, communicate or meet with you as per, understanding. They know that I am dealing with these kind of people, right? It strengthens relationship, of course. It helps to strengthen relationship. If suppose my friend who is with me and he knows me for almost a decade or two decade, you know, so he to know that I don't like spicy food, so he won't be offering me spicy food. Why? Because you know that I don't like it. This is how, relationship and, communication is being made. People know about you, right? It also helps in teamwork. Example, if suppose a kind of a person, you know, he's not very suitable with night shifts. He too know that he won't be able to work in night shift. His managers or his teammates also knows that कि या उसे रात को काम करना उससे पॉसिबल नहीं, वो नाइट शिफ्ट नहीं कर सकता. सो व्हाट वी कैन डू इज उसे नाइट शिफ्ट नहीं दिया जाएगा. क्यों? क्योंकि वो कॉम्पैटिबल ही नहीं है, राइट? सो इट हेल्प्स यू टू वर्क विथ अदर्स एज वेल. क्योंकि आपको ऐसा कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लोगों को पता है और आपको भी पता है कि आप वो काम नहीं कर पाएंगे. आपका वो पॉसिबिलिटीज नहीं. राइट? मूविंग ऑन. हाउ टू इंक्रीज ओपन एरिया? एज आई सेड, communicate honestly. It's very important, right? So people आपको अच्छी तरह से जान पाएंगे, राइट? कि आपके अगर अंदर में कुछ अच्छी चीजें हैं तो आप उनको बता सकते हैं, कुछ बुरी चीजें हैं तो उनको बता सकते हैं, अगर आप कहीं लैक कर सकते हैं उनको बता सकते हैं, ऑनेस्टली स्पीक कर सकते हैं. ठीक, तो जिससे लोगों को पता चल जाए कि आपके साथ में कैसे डील करना है या आपके साथ में टीम अप कैसे करना है, राइट? एंड most important thing is also you should, whenever you are meeting with people or working with a team or kind of in a professional setup, it's very much important that the information you are sharing is very appropriate. उसमें आप कुछ मिर्च मसाला लगा के नहीं बता रहे. लेट्स सपोज आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन who is a bit of, have hands on practice with excel but not very good. मैंने क्या किया, मैं कुछ बढ़ा चढ़ा कर बता दिया. ठीक, तो अब क्या होगा कि लोगों का एक्सपेक्टेशन उसके हिसाब से हो जाएगा. वो क्या होगा कि जब भी कुछ ऐसे टफ चीजें हो जाएंगी, अगर लेट सपोज कि मैं एक्सेल में फॉर्मूलाज अच्छे से बैठा सकता हूँ पर मैं मैक्रोज में एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैंने सबको बता दिया कि हाँ मुझे मैक्रोज आता है, वीबीए आता है, ठीक है, ये सब भी आता है, तो लोग क्या करेंगे, उनका एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से सेटअप हो जाएगा. मैंने क्या किया कि अपने ही स्किल कुछ बढ़ा चढ़ा कर बता दिया, तो उनका एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से हो जाएगा. तो बाद में चल के हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सके, राइट? इट ऑल्सो हेल्प्स टू एक्सेप्ट द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. अगर आपको लोगों को पता है और आपको भी पता है कि आप क्रिटिसिज्म जल्दी झेल नहीं सकते, राइट? तो लोग क्या करेंगे कि आपको जब भी कभी ऐसा फीडबैक देना होगा तो वो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं. इससे क्या होगा, एक तो उनका फीडबैक भी जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, साथ साथ में आपका जो प्रॉब्लम है उस पर भी ध्यान रखा जा सकता है. ठीक है. बिल्ड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप. ऑफ कोर्स जैसा मैंने बताया कि इस ओपन एरिया को कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, ट्रस्ट रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं. मूविंग ऑन. अब है हम लोगों का टॉपिक जो कि है ब्लाइंड स्पॉट, राइट? ये ऐसा है कि अननोन टू सेल्फ, आप खुद नहीं जानते लेकिन लोग आपके बारे में जानते हैं, राइट? जैसे आप लोगों को बात करते हुए इंटरप्ट कर सकते हैं, आपको इस चीज को फील नहीं होता कि आप लोगों को इंटरप्ट कर रहे हैं, बट पीपल नो दैट यू इंटरप्ट अदर. You don't allow people to speak when you are trying to speak or whenever you are giving point, right?
यू स्पीक टू लाउडली, या आप बहुत जल्दी रूड हो जाते हैं, आपको फील होता है कि नहीं आपका टोन बिल्कुल ठीक है, आपका पिच बिल्कुल ठीक है, पर ये ऑब्जर्वेशन दूसरों का है, आप अपने बारे में इसको जान ही नहीं रहे कि आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, या बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, या बहुत आप चिल्लाकर बात करते हैं, लाउडली बात करते हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है जब आप एंग्री होते हैं, आपको नहीं पता, आप खुद से अपना एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहे, लेकिन लोग देख पाते हैं इस चीज को, कि जब आप लेट सपोज एग्जांपल, जब अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप आंख में आंख मिला के बात नहीं करते, आपको लग रहा है कि आप सच बता रहे हैं, लोग जो है इस चीज के ऊपर ट्रस्ट करें, लेकिन लोगों को पता है कि आप जो है उन पे आई कांटेक्ट रख के बात नहीं कर रहे, राइट। तो यही चीज है कि इट्स अ काइंड ऑफ ब्लाइंड स्पॉट वेयर अननोन टू योरसेल्फ बट इट्स बीन नोन टू अदर्स। मूविंग ऑन, ब्लाइंड स्पॉट को क्यों मैटर करता है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट कैन अफेक्ट रिलेशनशिप, बिल्कुल। लेट्स सपोज कि आपको लगता है कि ये आपका कोई एग्जाम्पल, कोई खराब जोक, राइट, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा जोक है, ठीक, आपने बहुत अच्छा जोक मारा है, पर आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि आपके इस जोक से दूसरे कोई ऑफेंड हो जा रहे हैं, ठीक। तो ऐसा क्या हो सकता है कि आप तो फील करें नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक बात कर रहा था, मैं तो हल्का सा जोक किया, उसे ऑफेंड नहीं होना चाहिए था, राइट। ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ भी। तो इस ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपका पर्सनल ग्रोथ साथ साथ में आपका प्रोफेशनल ग्रोथ, राइट, ये भी इसको इंप्रूव कर सकता है, ठीक। तो हम लोगों को ब्लाइंड स्पॉट को कैसे इसको रिड्यूस करेंगे, ऑनेस्ट फीडबैक लेंगे। लेट्स सपोज कि हमने किसी से मजाक किया, उसे बुरा लग गया, ठीक, आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो उसको बुरा लग सकता है, या आप आसपास के लोगों को एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है कि हाँ आपने बहुत गलत जोक, बहुत गंदा जोक मारा है, ठीक। तो आप उससे पूछ सकते हैं क्या सॉरी, या आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं वन टू वन की सॉरी यार, हाँ ऐसा हो गया, शायद मैंने कुछ ऐसा बताया, तो आपको पता चल गया कि हाँ इस तरह का जोक किसी पे आप नहीं मार सकते, राइट, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप लिसन विदाउट बिकमिंग डिफेंसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कभी कदार हम लोग किसी से अपना जब पॉइंट रखते हैं, ठीक, और जब लोग उससे अग्री नहीं करते तो हम लोग बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोगों को दूसरों के बारे में सोचना होगा। ऑब्जर्व योर ओन बिहेवियर, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को भी ऑब्जर्व करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा लोग आपको फीडबैक नहीं देंगे, जरूरी नहीं कि हर कोई आपको फीडबैक देगा, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। And there are certain situation, there would be certain situations where people won't be giving you any feedback, बस उन्हें पता चल गया कि हाँ इस तरह का ऐसा प्रॉब्लम है, माइट भी हो सकता है कि आपका एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, माइट भी हो सकता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना ही बंद करे। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप खुद को ऑब्जर्व करें कि आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, और रादर आई वुड से कि आपका बिहेवियर क्या है, कहीं आप ज्यादा इंपल्सिव तो नहीं, जल्दबाजी में तो डिसीजन नहीं ले लेते, राइट। बी विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट करता है क्योंकि आप लोगों के अपने नजरिए से नहीं, अब लोग आपको जिस नजरिए से देखते हैं उनके फीडबैक से, उनके बिहेवियर से आप अपने अंदर कुछ चेंजेस ला सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा भी कर सकते हैं, राइट। मूविंग ऑन, हिडन एरिया, राइट, ऐसा जो आपको खुद को पता है पर दूसरे इसके बारे में नहीं जानते, और सबसे जरूरी चीज है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल हाइड इंफॉर्मेशन। देखिए सबसे जरूरी चीज क्या होगा, लेट्स सपोज आई फेयर काइंड ऑफ स्टेइंग अलोन, राइट, कि मैं रात को अकेले एक रूम पे नहीं रह सकते, और आप जो है ये चाहते कि ये किसी को पता भी नहीं चले, आपको ये पता है, यू नो अबाउट दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव, पर आप चाहते हैं किसी को पता ना चले, क्यों, क्योंकि वरना आपको लोग जज करेंगे, आप फेयर करते कि आपको लोग जज करेंगे, अरे क्या है इतना बड़ा हो गया और आपको अकेले सो नहीं पाता, रात को उससे डर लगता है, right? इसी चीज के लिए आप क्या करते हैं,
लोगों से इसको हाइड करके रखना चाहता है। ठीक, प्राइवेसी कंसर्न्स हो सकते हैं, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको रिजेक्शन, एग्जाम्पल लेट सपोज इफ यू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन एंड आपको अपनी फील होता है कि अगर आपने कुछ ऐसा स्किल, राइट, या ऐसा किसी एक स्किल में आप लैक करते हैं, अगर आपने बता दिया, तो शायद आप फ्यूचर में उस चीज के लिए कोई एक अच्छे प्रमोशन या एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए रिजेक्ट हो सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अपना पर्सनल बाउंड्री को ही चाहते हैं कि उसको कोई क्रॉस ना करे, इसलिए भी ऐसा होता है। ठीक है, मूविंग ऑन। हिडन एरिया नोन टू सेल्फ नोन टू अदर्स, हमारा टॉपिक चल रहा है। इसका फायदा क्या क्या है? इसका फायदा ये है कि ये स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप में काम कर सकता है, ट्रस्ट बढ़ा सकता है, ठीक, और कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकता है। एग्जाम्पल लेट सपोज कि मैं काइंड ऑफ मैं लोगों को जज करता हूँ एज पर देयर काइंड ऑफ क्लोथ्स, कैसे पहनते हैं, कैसे शूज पहनते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि मैं इस तरह से लोगों को जज करता हूँ, पर मैं इसको हाइड करके रखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि दूसरों को इसके बारे में पता चले। क्यों? क्योंकि हो सकता है इससे हम लोगों का जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ सकता है। Right. ठीक है, और हम चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ मैंने बता दिया, तो कहीं मेरा वो जो मेरे पे ट्रस्ट करता है या मैं उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ, वो एक बॉन्ड जो है वो खत्म ना हो जाए। ठीक, और लेट्स सपोज अगर आप किसी को बहुत हार्श फीडबैक दे देते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम से ये इस तरह से कम्युनिकेट करना या मुझसे मिलना जुलना या बातचीत करना वो बंद कर देगा। इसीलिए आप क्या करते हैं कि नहीं, ये जो मेरा पर्सनैलिटी का ये जो है, मैं जो लोगों को जज करता हूँ, ये दूसरों को बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं जज करता रहूं। ठीक है, यू शुड ओनली शेयर इन्फॉर्मेशन दैट यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग, राइट। हेल्दी प्राइवेसी इज इम्पोर्टेंट, वेरी मच, बहुत जरूरी है कि आपका जो प्राइवेसी है, हेल्दी प्राइवेसी है। जैसे एग्जांपल लेट सपोज कि right, हर किसी के लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, right? अपना ट्रॉमा, अपना खुशी, अपना गम, सब कुछ शेयर कर सकते हैं, ठीक। पर हर किसी के साथ नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि कल को ये इस इंफॉर्मेशन का कोई मिसयूज कर लिया, क्या पता वो मुझे जज करना लगे या मेरा मजाक बना दे। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आप कुछ ऐसा अपना इनसिक्योरिटी या बहुत प्राइवेट चीज सबको ना बताएं। हेल्दी प्राइवेसी को हिडन रखना एक इंपॉर्टेंट चीज है। मूविंग ऑन। अननोन एरिया, अननोन टू सेल्फ एंड अननोन टू अदर्स। ऐसा कुछ कोई टैलेंट या एबिलिटी, ठीक है, या एक्सपीरियंसेस जो आपने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है, लोग भी आपके इसके बारे में नहीं जानते। जैसा मैंने बताया, वैसा आई सेड टू यू अबाउट पीपीटी। जैसे मैं बहुत साल पहले जब मैं पीपीटी एक दो बार बनाया, ठीक है, बना रहा था, तो ठीक ठाक ही था। इट वाज नॉट, आई कैन नॉट से दैट इट वाज एक्सट्रीमली गुड, राइट, द काइंड ऑफ स्किल राइट नाउ आई हैव, राइट। तो फिर उसके बाद मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ऑल ऑफ अ सडन जब कोविड आया, ठीक है, मेरे पास में कोई काम नहीं था, मैं बैठा रहता था, तो मैंने सोचा चलो अपने ही कुछ टॉपिक्स पे ही कुछ पीपीटी बना लेता है। मैंने पीपीटी बनाया और मैंने कुछ लोगों को भेजा, दिखाया उनको कि कैसा बना है, एंड दे लाइक्ड इट। उस टाइम तक मुझे रियलाइज ही नहीं था कि मैं अच्छा पीपीटी बनाना जानता हूँ, कि मेरे अंदर ये स्किल आगे से था, बस ये हिडन था। बस इसको एक मौका चाहिए था कि ये इरेप्ट करे, काइंड ऑफ वोल्केनो, और वो बाहर आए, बताए सबको कि यस यू आर गुड, राइट। तो ऐसा कोई हिडन टैलेंट जैसे सिंगिंग जो बहुत लेटली डिस्कवर हो, राइट, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे लाइफ, राइट, जो मेहनत तो करते होंगे, उनके पास स्किल भी होगा, ठीक है, पर कुछ टेक्निक उस स्किल को और इम्प्रूव करने के लिए सालों साल लग गए, उन्हें पता ही नहीं चला। और ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने डिस्कवर किया कि यार ये तो बहुत अच्छी स्किल है, काश मैं इसको पहले यूज कर पाता। ये चीज लोगों को भी नहीं पता था, उन्हें भी नहीं पता था। एग्जाम्पल आई वुड से अबाउट हिमेश रेशमिया, राइट।
हिमेश वॉज वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर, पर कोई उन्हें कोई उन्हें एज अ सिंगर जानता भी नहीं था। मैंने भी उनका मतलब आशिक बनाया आपने से पहले, ऐसा कोई उनका सिंगिंग का एक्सपीरियंस है या उनका वो अच्छा गाते हैं, ये कभी मैंने मुझे भी नहीं पता था। मैंने उनका म्यूजिक सुना हुआ था सॉरी, बहुत सारे उन्होंने हिट मूवीज में म्यूजिक दिया हुआ था, ठीक है, पर मुझे कभी नहीं पता था कि वो एक अच्छे सिंगर भी है। क्या पता उन्हें भी नहीं पता हो। जब अचानक से उन्हें ऐसा मौका मिला, उन्होंने गाना गाया, लोगों को पसंद आ गया, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि अरे मैं तो अच्छा सिंगर भी हो सकता हूँ म्यूजिक डायरेक्टर के साथ में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने म्यूजिक कंपोज करने साथ साथ में उन्होंने सिंगिंग को भी अपना एक स्किल के हिसाब से, अपना एक पर्सनालिटी में उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उस एज अ प्लेबैक सिंगर भी अपने आप को डेवलप कर लिया, और रादर आई वुड से कि एक करियर अपॉर्चुनिटी उनको मिल गया, राइट। तो ये एक ऐसा स्किल, और द रादर आई वुड से काइंड ऑफ टैलेंट और एबिलिटी जो हिडन है सबसे, आप भी नहीं जानते हैं, दूसरे भी नहीं जानते हैं, ठीक। लेकिन जब डिस्कवर करते हैं आप, इसको डिस्कवर करने के लिए क्या करना होगा, आप प्रैक्टिस करते हैं, अचानक से वो स्किल सामने आ जाता है, राइट। मूविंग ऑन। हाउ टू डिस्कवर द अननोन एरिया। आप इसको कैसे डिस्कवर करेंगे? जैसे एग्जांपल व्हाट आई सेड अबाउट दैट मेकिंग पीपीटी, राइट। मैंने पीपीटी बनाया, मैं 2-3 बार मुझे फील होने लगा कि नहीं, ये थोड़ा ठीक नहीं है, इसमें थोड़ा कलर चेंजेस करते हैं, इसमें थोड़ा आइकन चेंजेस करते हैं, इसको थोड़ा ऐसा बनाते हैं, वैसा बना। ये एक नया हॉबी के हिसाब से मैंने लेना शुरू किया, देन आई रियलाइज दैट कि इट्स फन, एंड आल्सो आई एम वेरी गुड इन। या ऐसा कोई नया स्किल आप सीखने का कोशिश कर रहे हो, तो आपको पता चलता है अरे ये तो मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ। एग्जांपल लेट सपोज, किसी ने स्कूल में जब वो 2 3 4 5 6, राइट, उस एज में उस क्लास में जब पढ़ते होंगे तो उन्होंने पेंटिंग किया होगा। फिर इसके बाद 35 36 साल तक वो जॉब कर रहे हैं, कोई काम में बिजी है, अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, पर उन्होंने कभी पेंटिंग नहीं किया। फिर अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने एक बार पेंटिंग किया, रियलाइज हो, अरे मैं तो बहुत अच्छा पेंटिंग बना पा रहा हूँ, ठीक ठाक ही बना ले रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उसको एज अ हॉबी डेवलप करना शुरू हुआ, एंड कुछ ही दिनों में, विद इन अ मंथ और विद इन अ ईयर, वो बहुत अच्छे पेंटर बन गए, राइट। तो ये क्या है, इसको हम लोगों को अननोन एरिया जो है, राइट, जो आपसे भी छुपा हुआ है, दूसरों से भी छुपा हुआ है, इसके लिए हमें नया हॉबीज ट्राई करना होगा, नया स्किल सीखना होगा, ठीक है। एक्सेप्ट चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज। कभी कभार क्या होता है, किसी के अंदर बहुत ही अच्छा टीम मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा टीम मैनेज कर पाता है, लेकिन कभी उसे मौका ही नहीं मिला था कि वो अपनी इस टैलेंट को या इस चीज को शोकेस कर पाए, और उसे भी पता नहीं था कि वो बहुत अच्छा टीम मैनेज कर पाता है। तो उसे जब मौका मिला तो उसने टीम मैनेज किया, उसने दिखाया, राइट। और लोगों को रियलाइज हुआ, और उसे भी रियलाइज हुआ कि मैं तो इसमें बहुत अच्छा एक्सपर्ट हूँ, और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से पीपल मैनेज कर पा रहा हूँ, टीम मैनेज कर पा रहा हूँ, राइट। इसको हम लोगों को डिस्कवर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, दूसरा दूसरा कल्चर का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ठीक है। कोई अनफेमिलियर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, ठीक है। रिजेक्ट रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को भी रिफ्लेक्शन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे एक समरी टेबल है हमारा, ठीक है, जिसको हमने डिवाइड किया है: ओपन एरिया, ब्लाइंड स्पॉट, हिडन एरिया, अननोन एरिया, नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स, ठीक है। ओपन एरिया जैसा जो आप भी जानते हैं, दूसरे भी जानते हैं, ठीक है। सबको पता है कि आप काइंड ऑफ बुक्स रीड करना पसंद करते हैं, ठीक है, या आप नए फूड, नए तरह का कुजिन ट्राई करना पसंद करते हैं, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट जो आपको नहीं पता पर दूसरों को पता है, ठीक है, जो लोग आपके बारे में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि आप रूड हो जाते हैं, या एंगर इश्यूज है आपको, या आप इंटरप्ट करते हैं, ठीक है। ये दूसरों का ऑब्जर्वेशन है, आपको नहीं पता है लेकिन दूसरों को पता है आपके बारे में। हिडन एरिया विच इज काइंड ऑफ आपको पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता था, और आप चाहते भी नहीं कि आप दूसरों को उस चीज के बारे में पता लगे, राइट। अननोन एरिया जहाँ ऐसा चीज जो हिडन है आपसे भी और दूसरों से भी, ठीक है। जैसे मैंने लीडरशिप का एग्जांपल दिया, ठीक है, कि इमरजेंसी के सिचुएशन में लेकिन आपको भी नहीं पता था कि आप इस चीज को कर पाएंगे, और दूसरों को भी नहीं पता था लेकिन आपने किया और अच्छा किया।
Moving on. हाउ द जौहरी विंडो चेंजेस ओवर टाइम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपका जो हिडन एरिया है, ठीक है, दूसरों को दिखने लगा, ठीक है, या आप खुद आपको अपना ऑब्जर्व किया और आपका आपने उस बिहेवियर को चेंज किया। एग्जाम्पल, राइट, एग्जाम्पल क्या। ये दूसरों को पता था लेकिन आपको नहीं पता। पर जब आप लोगों से बात करने लगे, लोगों ने आपको फीडबैक दिया, तो आपने क्या किया? उस पे काम किया। एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। जो लोगों को पता है उन्होंने आपको फीडबैक दिया, आपने उस पे काम किया, आपने उसको इम्प्रूव कर लिया, ओपन एरिया हो गया, दूसरे भी जानते हैं आपके बारे में और आप भी जानने लगे इस चीज को। द गोल इज टू एक्सपेंड द ओपन एरिया। याद रखें, हमेशा हमारा कोशिश यही होना चाहिए कि आप अपने आप को सेल्फ अवेयर रखें। इससे क्या होगा कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, साथ साथ में आप अपने रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं। ठीक है। बस कुछ, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ सबको बारे में अपने बारे में सबको पता नहीं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्दी हिडन एरिया आपको रखना होगा जो आपको शेयर नहीं करते। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ डेवलप करते हैं, स्किल्स और काइंड ऑफ टैलेंट, ठीक है, तो आप लोगों को बताते हैं, यस यू हैव डेवलप्ड दिस, सो इट इज इम्पोर्टेंट। ओपन एरिया जो है लोगों को पता चले। इट ऑल्सो हेल्प्स, people start giving you respect or other people start liking you. Moving on. एडवांटेजेस ऑफ जोहारी विंडो। क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं? सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है, इंप्रूव कम्युनिकेशन, ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है, रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथनिंग करता है, ठीक है। ये हेल्प करता है आपको कि पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ। जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों को पता है कि आप क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं कर पाते, राइट, लेकिन आपको ये चीज नहीं पता, आप इसके बारे में अवेयर ही नहीं, ठीक है। कि लोग आपको आपके काम के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं तो बहुत जल्दी काइंड ऑफ डिफेंसिव हो जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आपने फीडबैक लिया, आप उस पर काम करते हो। इस पर काम करेंगे तो क्या होगा कि आप अपने पर्सनालिटी में सुधार ला सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, राइट। ये हेल्प करता है साथ साथ में हमें टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन के लिए। मूविंग ऑन। लिमिटेशंस ऑफ जोहारी विंडो। देखिए, जोहारी विंडो में कुछ लिमिटेशंस भी है, ठीक है। जैसा मैंने बताया, पीपल में हेजिटेट टू गिव ऑनेस्ट फीडबैक। अगर लोगों को पता है कि आप क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं लोग? आपको ऑनेस्ट फीडबैक नहीं देते। इंडिविजुअल्स में बी अनविलिंग टू शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। फीडबैक कैन बी समटाइम्स बी बायस्ड और इनएक्यूरेट। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फीडबैक्स ऐसे हो कि जो बायस्ड हो जाए, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता है कि आप शॉर्ट टर्म पर है, तो जो एक्चुअल फीडबैक देना चाहिए वो लोग आपको देंगे। मूविंग ऑन। ये एक छोटा मेमोरी टिक है, याद रखें। ओपन, एवरीवन को, लोग सबको पता है। ब्लाइंड क्या है? जो दूसरों को पता है लेकिन आपको नहीं पता। हिडन क्या है? जिसके बारे में आपको नहीं पता, ठीक है। यू नो, राइट, आपको पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता। अब ब्लाइंड क्या है? जो दूसरों को पता है लेकिन आपको नहीं पता। अननोन क्या है? किसी को भी नहीं पता। आपका ऐसा कोई पर्सनालिटी ट्रेट जो आप भी नहीं जानते, दूसरे भी नहीं जानते। एज आई सेड, जोहारी विंडो का समरी यही हम कह सकते हैं, यहाँ पे वाइंड अप करेंगे कि ये एक साइकोलॉजिकल मॉडल है जिसे डेवलप, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जोसेफ लुक एंड हैरिंगटन, इन्होंने मिलकर इन्होंने डेवलप किया सेल्फ अवेयरनेस और कम्युनिकेशन के लिए। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, 4 पार्ट है, देयर आर 4 पार्ट्स। फर्स्ट, ऐसा आपका पर्सनालिटी के बारे में जिसे आप भी जानते हैं, दूसरे भी जानते हैं। दूसरा, जो आप नहीं जानते अपने बारे में लेकिन लोगों को पता है। तीसरा, आप खुद अपने बारे में जानते हैं लेकिन आप नहीं चाहते कि दूसरों को इसके बारे में पता चले, राइट। या आप चाहते हैं, आपको तो पता है कि आप इस तरह का पर्सनालिटी आपका, आप लोगों को मिसजज करते हैं, ठीक है, जज करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे स्टोरीज मेड अप करते हैं, ठीक है। और लोगों को ऐसा नहीं पता कि आप कभी कदार नो
अपना मन गढ़ंत कहानी भी फैक्ट के हिसाब से या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर करता है। ठीक है। फोर्थ, अननोन, ये ऐसा जो आप भी नहीं जानते, दूसरे भी आपको बारे में। हियर वी आर एंडिंग द टॉपिक। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स यू कैन गिव योर फीडबैक टू। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।